Good evening, dear students. After taking your online classes, I am starting your online classes in physics. Two chapters I already explained. Now I am starting your third chapter, which is energy. In the chapter of energy, first you will read ki what is energy. Okay, and before energy, you will read ki what is work, because of your work is totally depend on your energy. You are doing your work according to your capacity. So by this, the definition of a energy is capacity to doing work. Okay, now the second one is you will read ki unit of energy. What is a unit of energy and the different form of energy, and you can see the types of energy. Next one is a interconversion of energy, ki how can you change energy one form to the another form. Okay, and the process during the changes of energy. Next you will read the law of conservation of energy. And the law of conservation of energy, it means energy nor be created nor be destroyed, only change one form to the another form. This is your law of conservation. An example of these energy, work, interchange of energy or a conservation of energy, the example also you will learn, क्योंकि by the help of example the definition is more easy to learn. Now the energy, we have read that a force when applied can move a stationary body. When the force applied on a body move it, work is said to be done by the force on the body. But if the work does not move on applying a force on it, no work is said to be done by the force on the body. Clear? कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए यू नीड अ फोर्स. स्टेशनरी चीज़ को मूव करने के लिए यू नीड अ फोर्स. स्टेशनरी इन द सेंस ऑफ कि अ बॉडी इज इन अ सेम प्लेस अकॉर्डिंग टू द टाइम. ऑल ऑफ यू नोज कि टाइम इज ऑलवेज बी चेंज. टाइम चेंज होता रहता है, बट टाइम चेंज हो रहा है बट चीज़ अपनी ही जगह पे स्टेशनरी सिचुएशन पे है. तो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और अ स्टेशनरी. सो किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यू नीड अ फोर्स. आपको फोर्स की ज़रूरत होती है. एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ए बॉडी, कि सपोज यहाँ पे ये पेन है, आपने इस पेन को फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है. ठीक है, बॉडी यहाँ पे थी और मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी यहाँ पे आ गई. ठीक है, सो व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई यू कैन से कि वर्क शुड बी डन इन दैट सिचुएशन. कि जब आपने किसी बॉडी को फोर्स लगाया, किसी स्टेशनरी बॉडी को फोर्स दिया और बॉडी मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रही है, इट मीन्स इट मेजर अ डिस्टेंस. दैट्स वाई इन दैट सिचुएशन यू कैन से कि आपने काम किया, you have done the work. Okay, but in the second situation कि when you are applying a force, ठीक है, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स बट बॉडी इज नॉट मूविंग, इट मीन्स दिस इज अ पेन. ओके, मैंने इस पे फोर्स लगाया बट ये अपनी ही जगह पे है, स्टेशनरी ही सिचुएशन पे है, इट इज नॉट मूविंग. देन इन दैट सिचुएशन वर्क इज नॉट डन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कि सपोज फुटबॉल है, आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल क्या करती है, एक डिस्टेंस मेजर करती है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. देन यू कैन से कि वर्क शुड बी डन. बट यू आर किकिंग अ वॉल, आपने वॉल को किक किया, आप यू आर अप्लाइंग अ फोर्स कि आपने वहाँ पे फोर्स दिया, बट फोर्स तो दिया बट वॉल क्या होती है, अपनी ही जगह पे स्टेशनरी सिचुएशन में रहती है, वो मूव नहीं करती है. सो इन दैट सिचुएशन वर्क विल बी ज़ीरो और वर्क शुड बी नॉट डन. Clear? And this is a definition of a work. The work done by a force is measured as the product of the force and the distance moved by the body in the direction of a force. कि when work should be done, कि work is the product of force and distance
मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी को फोर्स लगाते हो तो वो हमेशा इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करती है, नॉट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स. ओके, दैट्स वाई द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. By this you can find out the unit of work. You can see कि work equals to force into distance. This is a formula. Okay, कि आपने force लगाया और body move कर रही है. That's why work should be done. It means work is depend force as well as distance. That's why दोनों चीज़ होनी चाहिए कि आपने force लगाया और body क्या कर रही है, move कर रही है. Move कर रही है, it means distance measure कर रही है. Clear? So force unit is Newton. It is symbolized by N, or distance unit is meter. It is symbolized by small m, small m, and Newton meter is called your joule. Okay, so 1 joule you can write कि 1 joule equals to 1 Newton into 1 meter. And the next you have to define 1 joule. 1 joule is said to be that when you are applying a force of 1 न्यूटन, जब आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर और बॉडी मूव करती है, बॉडी मेजर करती है 1 मीटर की डिस्टेंस को, दैट्स वाई यू कैन से 1 जूल of a body. It means 1 joule is said to be done when after applying a 1 Newton force, body move at a distance of 1 meter. It is 1 joule. Clear all of you? And the example of a work, there are various examples. You are running, you are walking, you are dancing, you are skipping. These all are example of a work. कि in these work जिस भी काम को करने में आप फोर्स लगाते हैं और एक डिस्टेंस मेजर करते हैं आप, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्क शुड बी डन. क्लियर? Now the next topic is your energy. So energy is the capacity of doing work, कि जितना आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या लगता है, एनर्जी लगती है. और सीधा इन सिंपली कि जितनी आप पे एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, काम करते हैं. For example, you must have experienced that more you ride on a bicycle or more you run all around the bicycle, more you feel tired. Obviously आप जैसे जैसे साइकिल चलाते हैं, ठीक है, आप साइकिल चलाएं और कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि आप क्या हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, टायर्ड, आपको थकान लग रही है. क्यों? क्योंकि आपने काम क्या किया, पैडल चलाया आपने, और जितना आपने पैडल चलाए उतनी ही आपने डिस्टेंस मेजर की, उतनी ही आपकी एनर्जी लगी. क्योंकि आप पैडल चला रहे हैं तो ड्यूरिंग द पैडलिंग आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना एनर्जी वो कर रहे हैं. तो जितना आपने वर्क किया उतनी वो किस में कन्वर्ट हुई, सॉरी, जितनी आपके अंदर एनर्जी थी उतना आपने क्या किया, साइकिल चलाया. और साइकिल चलाया इन द सेंस आपने क्या किया, वॉक किया. दैट्स वाई वॉक इज टोटली डिपेंड ऑन योर एनर्जी, कि जितनी आपकी एनर्जी होती है केवल उतना ही काम आप कर सकते हैं. ठीक है. इफ वर्क इज मोर देन एनर्जी विल ऑल्सो बी मोर, कि आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं. अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है देन देयर विल बी नो वर्क. ठीक है. So similarly the work done on a body in changing its state is said to be energy possessed by the body. कि जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो वो एनर्जी किसमें, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर? देयर आर वेरियस एग्जाम्पल, और इन योर बुक द एग्जाम्पल इज इन कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट, कि जब आप किसी बॉडी को मूव करते हैं ग्राउंड से हाइट तक. अब ऑब्वियसली जब आप हाइट लेते हैं तो हाइट में क्या काम करती है, ग्रेविटी करती है. क्योंकि आपकी बॉडी, अगर मैंने कोई बॉडी को ऊपर उछाला तो वो नीचे गिरती है. क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ. और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. यस और नो? चीज़ नीचे क्यों गिरती है, बिकॉज ऑफ ए हमारे जो अर्थ है, अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है. इसलिए जो आपका फोर्स लगा वो क्या लगा, फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी लगा. ठीक है. बट जैसे जैसे वो हाइट की तरफ जाती रहती है तो आपकी एनर्जी क्या होती है, चेंज होती जाती है.
क्लियर. एंड द सेम एज कि अगर बॉडी कोई इनिशियली सिचुएशन में है, इनिशियली और ए रेस्ट सिचुएशन में, और वो वहाँ से मूव करना शुरू कर रही है, इट मीन्स अगर वो मोशन में शुरू कर रही है वर्क, मैंने फोर्स लगाया, पहले बॉडी स्टेशनरी सिचुएशन में थी, मैंने बॉडी को फोर्स लगाया तो वो क्या कर रही है, मोशन की सिचुएशन में आ रही है. और जैसे जैसे वो मोशन प्रोड्यूस कर रही है तो वो मोशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी में. दैट्स वाई कि एनर्जी इज इक्वल्स टू योर वर्क. जितनी आपकी एनर्जी होती है उतना ही आप काम करते हो. मोर ऑफ एनर्जी, इंक्रीज ऑफ योर वर्क. लेस ऑफ एनर्जी, डिक्रीज ऑफ योर वर्क. क्लियर. नाउ द यूनिट ऑफ एनर्जी. Energy is equals to your work. That's why the unit of energy is equals to unit of your work, and work unit is your joule. That's why energy unit is also be 1 joule. Okay, and the same as ki you can define as 1 joule ki after applying a force of 1 newton, a body displays at a distance of 1 meter. And the another unit is a calorie. Okay, and 1 calorie equals to 4.2 joule, and the another one is a kilocalorie ki 1 kilocalorie equals to 1000 joule. Okay, so just read ki what is work, what is relation between energy and work and unit of energy. Okay, and just read the next topic, different form of a energy. Then tomorrow I will explain this different form of a energy.